Good morning, student. Today we will discuss who is Muslim. As you know that we are discussing Muslim law, and I have already stated that a Muslim law is a branch of civil law which regulates the family matters of the Muslim. मैंने आपसे बताया है कि मुस्लिम विधि है क्या। मुस्लिम विधि सिविल विधि की एक शाखा है जो मुस्लिम्स के फैमिली मैटर्स से रिलेटेड विषयों को देखती है या इस पर रोशनी डालती है। हम जो चर्चा करने वाले हु इज मुस्लिम, ए मुस्लिम इज ए पर्सन हुज रिलीजन इज इस्लाम। मुस्लिम क्या है? मुस्लिम एक इंसान है और जिसका धर्म इस्लाम है। इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम? The Arabic word Islam means submission to the will of God. A Muslim is a person. A Muslim is a person whose religion is Islam. Whose religion is Islam. Islam is an Arabic term. Islam is an Arabic term. Islam is an Arabic term. Islam is an Arabic term whose base is the submission to the will of God. Submission to the will of God. मुस्लिम का मुस्लिम इंसान है और जिसका धर्म इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ है जो अपने ईश्वर के प्रति आसक्त हो, ईश्वर के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो। Submission to the will of God. Islam is a religion in which it is believed that Islam is a religion. Islam is a religion in which it is believed that in which it is God is one and only one. God means Allah. God is one. God is one and only one. God is one and only one. Muhammad is his Rasul. Muhammad is his Rasul. Rasul means messenger. Rasul means messenger. Means what we have seen? We have seen that it is believed in Islam that a Muslim is a person and who shall have a full faith and believe that God is one and only one and Muhammad is his Rasul. God is one, Allah एक है और एक है, और मोहम्मद इज हिज रसूल। मोहम्मद जो है वो मैसेंजर है। जिस भी व्यक्ति को यह विश्वास है या आस्था है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, इस दो चीज पर जिसकी आस्था है, संपूर्ण समर्पण है, संपूर्ण विश्वास है, हम ऐसे व्यक्ति को मुस्लिम कह सकते हैं। The word Muslim is derived from Islam
and signifies a person who have a faith in the principles of Islam. Means Muslim term came from Islam, and who has faith in the fundamental principles of Islam. It has been stated by फाइजी. फाइजी ने अपनी किताब में इसको लिखा है. उस किताब का नाम है आउटलाइंस ऑफ मोहम्मदन लॉ, एडिशन 14, पेज 12 में आप इसको पाएंगे. क्या कह रहा है? मुस्लिम, द टर्म मुस्लिम इज डिराइव्ड फ्रॉम इस्लाम and it means signifies the person who adopts the faith of Islam. Who adopts the faith of Islam. And the court of law, Abdul Razzaq versus Aga Muhammad. 1897 का केस है. 1894 का केस है. अब्दुल रज़ाक आगा मोहम्मद. The court has also stated one thing, that it is the requirement to be a Muslim of a person that it must be having of beliefs and faith that God is one and Muhammad is his Rasul. Means court has also established that Muslim under Islam means having a belief and faith that God is one. God means Allah. God is one and prophethood of Muhammad. Prophethood of Muhammad means कोर्ट भी इस बात को लेकर कहा कि इस्लाम के तहत मुस्लिम वही होगा जिसका ये विश्वास होगा कि अल्लाह के अलावा इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, और मोहम्मद इसके पैगंबर हैं. दिस बिलीफ इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द रिकॉग्नाइजिंग ए पर्सन एज ए मुस्लिम. मीन्स यही विश्वास, यही दो रिक्वायरमेंट, अगर दो चीज है, अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है या आस्था रखता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ अल्लाह है, मोहम्मद इसके पैगंबर हैं, अगर यही चीज जिस व्यक्ति में है तो यह मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति मुस्लिम है. मुस्लिम होने के लिए इन दो चीजों का होना नितांत जरूरी है. बट it is the matter of the feeling of heart. Belief and faith, विश्वास और आस्था, यह तो व्यक्ति के हृदय का विषय है. किस हद तक वह आस्था है. There is no we can say established test by which anyone can say that he is having a full faith and belief. विश्वास और आस्था है उसके अंदर का विषय है. इसीलिए और आस्था विश्वास के आधार पर किसी को मुस्लिम मान लेना
ये तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसको लेकर विसंगतियां भी उत्पन्न होती हैं। उन विसंगतियों को दूर करने के लिए कोर्ट ने भी आगे जाकर यह स्थापित कर दिया कि बाई ए पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज ए मुस्लिम ओनली बाई टू रीजंस, बाई टू कंडीशंस। देयर इज टू कंडीशंस, दो कंडीशंस। नंबर 1, मुस्लिम बाई बर्थ, अगर कोई व्यक्ति जन्म से मुस्लिम है तो मुसलमान कहा जाए, मुस्लिम बाई बर्थ। नंबर 2, मुस्लिम बाई कन्वर्जन, मुस्लिम बाई कन्वर्जन, मुस्लिम बाई बर्थ, मुस्लिम बाई कन्वर्जन। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं। और यदि व्यक्ति को इस्लाम के 2 मूलभूत सिद्धांतों पर भरोसा है कि अल्लाह और अल्लाह ही है इस ब्रह्मांड में, मोहम्मद इसके पैगंबर हैं, अगर इन 2 चीजों पर किसी भी व्यक्ति का विश्वास और आस्था है, लेकिन इसके अलावा अगर वो कल्चर जो है मोहम्मदन लॉ का, इस्लामिक लॉ का, या जो प्रैक्टिस है, जैसे अगर एक व्यक्ति का विश्वास है लेकिन वह नमाज अदा नहीं करता है, जो कस्टम्स है उसको नहीं मानता, तो क्या वो मुस्लिम कहलाया जाएगा? हाँ, जिस व्यक्ति को इस्लाम के 2 मूलभूत सिद्धांतों में विश्वास है, आस्था है, और इसके अलावा यदि वह कल्चर्स को नहीं मानता है, नमाज नहीं अदा करता है, तो भी वह व्यक्ति इस्लाम के तहत ही मुस्लिम कहलाने का पूरा हकदार होगा। तो मैंने क्या देखा कि किसी व्यक्ति को यदि आस्था विश्वास है कि गॉड एक है और मोहम्मद इसके मैसेंजर हैं, जिसको यह आस्था विश्वास है, तो वह मुस्लिम कहलाने के लिए पर्याप्त है। आगे जाकर कोर्ट ने यह स्टैब्लिश किया कि ये तो आस्था का विषय है, यह हृदय के अंदर का विषय है, सिर्फ इसी आधार पर किसी को मुस्लिम कहना ठीक नहीं है। कोर्ट ने 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए, मुस्लिम बाई बर्थ, मुस्लिम जन्म से, मुस्लिम बाई कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है धर्मांतरण। धर्मांतरण के आधार पर अपना धर्म छोड़कर, यदि कोई हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुस्लिम होता है तो इसके आधार पर वह मुसलमान कहला जाएगा, और एक भाई जन्म से उसको मुस्लिम कहा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। टुमारो वी विल डिस्कस मुस्लिम बाई बर्थ।